Storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंदध्वनियाप्याम् अहो आ गुरुकाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान प्रथम गाथा में मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव। ये स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है, उपयोग लक्षण से लक्षित है। ऐसे आत्मा के शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेने से जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। ऐसा समयसार में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव अधिकार में जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप यथार्थ क्या है, वो आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव का असल स्वरूप क्या है वो मालूम नहीं है। इसलिए अजीव को जीव मान लेता है और जीव को अजीव मान लेता है। जीव को अजीव मानना ये तो विपरीत है। All participants are muted, and they can unmute themselves. All participants are muted, and they can unmute themselves. तो जो विपरीत मान्यता है उसका नाश होगा तो सम्यक दर्शन की प्रकटता होगी। ऐसे जीव जीव अधिकार की 58, 59, 60 गाथा चलती है। वहाँ शिष्य का प्रश्न है
कि व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं का अर्थ, व्यवहार नहीं का कथन और निश्चय नहीं यानी निश्चय नहीं का कथन, दोनों के बीच में विरोध आता है। शिष्य ने क्या पूछा कि हे आचार्य भगवान, आप जो समझा रहे हैं वो तो सत्य है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, इसलिए आशंका उत्पन्न होती है। आपका वचन तो यथार्थ है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है, इसलिए प्रश्न ऐसा होता है कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं में विरोध आता है। एक नई से जो स्वरूप कहा और दूसरी नई से जो स्वरूप कहा, वो दोनों के बीच में तो विरोध आता है। विरोध तो आना नहीं चाहिए, तो हम उसको अविरोध, विरोध रहित, उसको कैसे समझे? ऐसा शिष्य ने गाथा 58-59 उसके हेडिंग में ऐसा प्रश्न किया, फिर से गुजराती में। आचार्य भगवंते સમયસાર ગ્રંથની રચના કરતા સમયે પ્રથમ માંગલિક કરીને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હું સમયસારને દર્શાવીશ, ન્યાયયુક્તિથી દર્શાવીશ। પૂર્વે જે આચાર્યો થયા છે એમણે જે આગમોની રચના કરી છે એના આધારે બતાવીશ। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સાક્ષાત સિમંદર ભગવાન અત્યારે બિરાજમાન છે, એમની વાણી મેં સાંભળી છે, એ દિવ્ય ધ્વનિના આધારે સમજાવીશ। અને અમે આત્માની અનુભૂતિના કાળે જે ભાવશ્રુત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, એ ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં આત્માનું જેવું સ્વરૂપ આવ્યું, જેવું સ્વરૂપ જણાયું, એવી આત્માની અનુભૂતિના આધારે કહીશ। આચાર્ય ભગવાન સમયસારનો અર્થ કરે છે આત્માનો પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ। આચાર્ય ભગવાન આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ શા માટે દર્શાવવા માગે છે? તો કે આવા શુદ્ધાત્મા પર દ્રષ્ટિ પડે તો સમ્યક દર્શન થાય,
જ્ઞાન ઉપયોગ જ્ઞાયકને નિર્વિકલ્પ દશામાં જાણી લે તો સમ્યક જ્ઞાન થાય અને આવા શુદ્ધ સ્વભાવમાં લીન થવાથી સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ થાય. આવા સમયસા શાસ્ત્રમાં જીવ અજીવ અધિકાર ચાલે છે. જીવ અજીવ અધિકારની રચના આચાર્ય ભગવંતે કેમ કરી? તો આચાર્ય ભગવાન દર્શાવે છે કે હે અજ્ઞાની જીવ, તું મિથ્યાત્વની ભૂમિકામાં ઊભો છો ત્યાં સુધી જીવના સ્વરૂપને અજીવનું સ્વરૂપ માને છે અને અજીવના સ્વરૂપને જીવનું સ્વરૂપ માને છે. આવી અજ્ઞાનીની ભૂલ કેમ થાય છે? તો કે અજ્ઞાની જીવનું લક્ષણ જાણતો નથી, અજીવનું પણ યથાર્થ લક્ષણ જાણતો નથી. જો જીવના સ્વરૂપને તું અજીવનું માની લે તો તારી દશામાં વિપરીતતા ઉત્પન્ન થાય, મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થાય અને તને તો અનંત સંસાર એના ફળમાં મળે. સંસાર છે એ દુઃખમય છે. તું અનંતકાળ દુઃખને પ્રાપ્ત કરે. એવા જીવ અજીવ અધિકારમાં આપણે ગાથા 58, 59, 60 એની ટીકા ચાલતી હતી. પણ ફરીવાર એ ગાથાનું હેડિંગ લઈને આપણે ટીકા ફરી પાછી અભ્યાસ કરવાના છીએ. ગાથા ઉપર હેડિંગ છે હવેનો અર્થ શું છે કે આગલી ગાથામાં હે આચાર્ય ભગવાન, તમે વર્ણાદિક ભાવો નિશ્ચયથી જીવના કેમ નથી તેનું કારણ અમને સમજાવ્યું. વર્ણાદિક ભાવો નિશ્ચયથી જીવના નથી એનો અર્થ એમ કે વ્યવહારથી જીવના છે. તો નિશ્ચયથી જીવના કેમ નથી તેનું કારણ તો અમને સમજાણું, પણ હવે પ્રશ્ન એમ થાય છે કે તમે બે નહીંથી કથન કરો ત્યારે 58, 59, 60નું હેડિંગ હવે પૂછે છે કે વર્ણાદિક નિશ્ચયથી જીવના નથી એવું પૂર્વગાથામાં કહ્યા પછી અમે પૂછીએ છીએ કે આ રીતે એટલે પૂર્વગાથામાં સમજાવ્યા મુજબ વ્યવહાર નહીં અને નિશ્ચય નહીંને વિરોધ આવે છે. વિરોધ શું આવ્યો? વિરોધ ક્યાં આવ્યા?
तो कि वर्णादिक भाव निश्चय से जीव का नहीं है। उसका अर्थ ये कि व्यवहार से जीव का है। तो वर्णादिक भाव व्यवहार से जीव का है और निश्चय से उसका नहीं है, जीव का नहीं है। ऐसा दो परस्पर विरुद्ध कथन जब आता है तब જ્યારે પરસ્પર વિરોધી કથન આવે છે ત્યારે તેમાં એટલે કે બંને કથનમાં અવિરોધ કઈ રીતે કહેવામાં આવે છે એટલે કે સમજાવવામાં આવે છે તેનો દ્રષ્ટાંત આપીને આચાર્ય ભગવંત 3 ગાથા દ્વારા સમજાવે છે। तो 58, 59, 60 गाथा का विषय क्या है? तो कि उसका विषय है व्यवहारनी का कथन और निश्चयनी का कथन। दोनों कथन करने में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, परस्पर अविरुद्ध कथन होना चाहिए, विरोध रहित कथन होना चाहिए। तो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, दोनों के कथन में अविरोधपना आचार्य भगवंत आप समझाइए, मेरी समझ में नहीं आता। अब देखो, टीका पेज नंबर 113, लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार व्यवहारी जन मार्ग पर निकला हुआ संघ को लुटाता हुआ देखकर लुटाता हुआ देखकर संघ की मार्ग में स्थिति होने से संघ मार्ग पर चलता हुआ है, उसलिए उसका उपचार करके, उसका यानी संघ का फिर से कोई पूरा संघ है, वो मार्ग पर से चलकर निकला, तो संघ के सभ्य है, उसको लुटेरा ने लूट लिया। ऐसा देखकर कथन कैसे करने में आया? तो कि कथन उपचार से करने में आया। उपचार किसको कहते हैं? कि एक को दूसरे में मिलावट करके कहना, वो उपचार है।
जैसे कि नेमिनाथ भगवान काले हैं, तो शरीर काला है, आत्मा तो उसका आरोपी है। तो नेमिनाथ भगवान के आत्मा में परद्रव्य यानी शरीर उसको मिलाकर यानी उपचार करके कहना कि नेमिनाथ भगवान काले हैं। वहाँ जैसा उपचार किया वैसा संघ निकला मार्ग पर, लूटारा ने लूट लिया। तब उपचार से कथन क्या किया? ये मार्ग लूटाता है। किसी ने मार्ग की लूट की है कि मार्ग तो जहाँ है वहाँ है? तो कि मार्ग तो जहाँ है वहीं है, लेकिन वो मार्ग पर चलने वाला संघ तो एक समय के लिए पूरे संघ को मार्ग में अभेद करके कथन करने में आया, ये मार्ग लुटाता है। मार्ग लुटाया है। मार्ग तो लोकाकाश के जो क्षेत्र में वही है। लूट चली वो तो संघ में जितने सभ्य थे उसका माल चुराया है, उसका माल लूटा है। मार्ग को लूटा नहीं है। तो ऐसा उपचार करने में आता है। फिर से गुजराती में टीका। જેમ વ્યવહારી લોકો માર્ગે નીકળેલા કોઈ સંઘને લૂંટાતો દેખી સંઘની માર્ગમાં સ્થિતિ હોવાથી સંઘ એ માર્ગ ઉપર ચાલતો હોવાથી તેનો ઉપચાર કરીને સંઘના લોકો લૂંટાયા, એનો ઉપચાર કરીને, ઉપચારનો અર્થ એકને બીજામાં ભેળવીને કથન કરવું, એને ઉપચાર કહેવાય। જેમ કે નેમિનાથ ભગવાન કાળા હતા, તો નેમિનાથ ભગવાન તો આત્મા છે, એ તો અરૂપી છે, એ તો સ્પર્શ રસગંધ વર્ણથી રહિત છે। પણ નેમિનાથ ભગવાનને અગાતી કર્મના ઉદયમાં જે શરીર મળ્યું એ શરીર કાળું છે ને એની સાથે નેમિનાથ ભગવાનનો આત્મા જોડાયેલો છે, ક્ષણિક જોડાયેલો છે, ઉભય બંને પ્રાપ્ત છે।
તો શરીરને દેખીને શરીર નેમિનાથના ભગવાન સાથે બંધને પ્રાપ્ત હોવાથી શરીરના રંગનું આરોપણ નેમિનાથ ભગવાનના આત્મામાં કરીને કથન કરવું એ તો વ્યવહારનું કથન છે. એમ માર્ગ ઉપર સંગ લૂંટાતો હોવા છતાં સંઘને માર્ગમાં અભેદ કરીને એમ કહેવું કે માર્ગ લૂંટાય છે એ તો ઉપચારનું કથન છે, એ તો વ્યવહારનું કથન છે. तो व्यवहार से कहा जाएगा कि ये मार्ग लूटाता है, जरा देखना, उस रोड पर जाना मत, उस मार्ग पर जाना मत. तो ये व्यवहार का कथन हुआ. अब आगे, फिर भी ऐसा व्यवहार किया संघ को मार्ग के साथ मिलावट करके मार्ग लूटने में आता है, ऐसा कथन करने में आया. फिर भी निश्चय से देखने में आए तो जो आकाश का कुछ भाग स्वरूप है, ऐसा मार्ग तो कभी लूटाता नहीं. जो मार्ग है लोकाकाश के क्षेत्र में है, और लोकाकाश का जो क्षेत्र है वो लोकाकाश के जिस क्षेत्र में से मार्ग पसार हो रहा है वो मार्ग की लूट हुई नहीं है. तो निश्चय से देखने में आए तो जो आकाश का कुछ भाग स्वरूप है, आकाश का कुछ भाग स्वरूप कौन है? मार्ग. ऐसा मार्ग को कोई लूटता नहीं. तो वास्तव में मार्ग की लूट हुई नहीं निश्चय से देखे तो. लेकिन संघ जन को मार्ग के साथ उपचार करने में आए तो मार्ग लूटाता है, वो उपचार कथन है, व्यवहार कथन है. तो निश्चय और व्यवहार के बीच में वास्तव में तो कोई विरोध है ही नहीं. व्यवहार का अर्थ उपचार से कथन. निश्चय से कहना है तो आत्मा को मुख्य करके कहो. आत्मा का कथन निरपेक्ष करो. तो मार्ग का स्वरूप जैसा है वैसा कहना वो निश्चय नहीं का कार्य है.
और संग उस मार्ग पर एक क्षण के लिए चला तो व्यवहारनी ने कहा कि मार्ग लुटाता है। वो तो उपचार कथन है। ये दृष्टांत दिया। अब सिद्धांत में उसी प्रकार भगवान अरनदेवो जीव में बंद पर्याय से स्थित पाया हुआ कर्म और न कर्म का वर्ण देख कर कर्म नो कर्म की बंद पर्याय से जीव में स्थित होने से उसका उपचार करके, उपचार करना वो क्या है? व्यवहार। ध्यान से सुनना फिर से। आत्मा, कर्म और नो कर्म तीनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ने पूर्व भव में जो विभाव किया था उसके फलस्वरूप द्रव्य कर्म और नो कर्म का बंध हुआ था। तो जीव 8 प्रकार के द्रव्य कर्म के साथ उभय बंध को प्राप्त है और आत्मा शरीर के साथ भी उभय बंध को प्राप्त है। जब आत्मा कर्म नो कर्म के साथ उभय बंध से प्राप्त है तब कर्म नो कर्म जीव के साथ क्षणिक बंध पर्याय को प्राप्त है तब कर्म नो कर्म जीव के लिए परद्रव्य है। तो जीव में कर्म नो कर्म क्षणिक अभेद करके जीव का कथन करना वो तो उपचार है, व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है। व्यवहार से ये शरीर मेरा है ऐसा कहने में आएगा। व्यवहार से एक कर्म का उदय मुझे आया है ऐसा कहने में आएगा। क्यों कहने में आएगा? तो कि पूर्व भव में मैंने जो मोह राग द्वेष आदि भाव किए थे और पूर्व भव में मैंने आयु कर्म का बंध किया था, वो आयु कर्म है तब तक जीव शरीर बंध को प्राप्त रहेंगे। और मैंने जितनी इंटेंसिटी से मोह राग द्वेष किया था इतने काल तक द्रव्य कर्म आत्मा के क्षेत्र के साथ
बंधा हुआ रहेगा। तो आत्मा बंध स्वरूप है ऐसा कहना, या तो आत्मा बंध को प्राप्त हुआ है ऐसा कहना, वो तो कर्म नो कर्म के साथ उपचार करके कथन करने में आया, इसलिए वो व्यवहार का कथन है। फिर से गुजराती में टीकानी चौथी लाइन है, तेवी रीते એટલે દ્રષ્ટાંતમાં દર્શાવ્યા મુજબ ભગવાન અરણદેવો અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય એવા આર્યંત પરમાત્મા પૂર્વ દિશામાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં 20 વિરમાન તીર્થંકરો સાક્ષાત બિરાજે છે. એવા આર્યન દેવો જીવમાં બંધ પર્યાયથી સ્થિત પામેલા આવા આર્યન પરમાત્મા જેવા આર્યન પરમાત્મા પણ 4 અઘાતી કર્મથી બંધાયેલા છે અને શરીરથી પણ બંધાયેલા છે. હવે હરિયન પરમાત્મા બંધાયેલા છે એવું કથન કરવું હોય તો કર્મ નો કર્મ પરદ્રવ્ય છે. એ પરદ્રવ્ય અને જીવ વચ્ચે ક્ષણિક એક સમય માટે બંધને પ્રાપ્ત છે. એવું એક સમયને બંધને પ્રાપ્ત આત્મા છે એમ કેવું એ ઉપચારનું કથન છે, વ્યવહારનું કથન છે. ઉપચાર કેમ કીધો? તો કે નો કર્મ ને કર્મ જીવ સાથે બંને પ્રાપ્ત છે. તો કર્મ નો કર્મ નો ઉપચાર જીવ સાથે કરીને કથન કરવું એને વ્યવહાર કયો. નેમિનાથ ભગવાનનું કાળું શરીર નેમિનાથ ભગવાનના આત્મા સાથે બંધને પ્રાપ્ત છે, માટે નેમિનાથ ભગવાન કાળા છે. તો નેમિનાથ ભગવાનના શરીરનો રંગ જોઈને આત્માને કાળો કેવો, નેમિનાથ ભગવાનને કાળા કેવા, એ ઉપચારનું કથન છે. ખરેખર નેમિનાથ ભગવાન કેવા છે? તો કે નેમિનાથ ભગવાન તો અરૂપી છે, અનંત જ્ઞાન દર્શનમય છે, સુખના પિંડ છે. એની અરૂપી સત્તા અનંત ગુણાત્મક છે, ત્રિકાળ છે, પરિપૂર્ણ છે અને શુદ્ધ છે. એના સ્થાને એમ કેવું કે નેમિનાથ ભગવાન કાળા છે. તો વ્યવહારનું કથન થયું. હવે કે છે ફરીવાર, इस प्रकार भगवान रणदेवो जीव में बंध पर्याय से स्थित
पाया हुआ कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर वर्ण वर्ण किसका लक्षण है? पुद्गल का। वर्ण किसका लक्षण है? कर्म नो कर्म का। तो कर्म नो कर्म उसके लक्षण का आत्मा में आरोपण करना, परद्रव्य को स्वद्रव्य में आरोपित करना, उसको उपचार कहने में आता है। तो कर्म और नो कर्म का वर्ण को देखकर कर्म नो कर्म से बंधा हुआ अर्यंत परमात्मा परम ઔદારિક શરીર સાથે અને શરીર સાથે બંધને પ્રાપ્ત છે. એવી જીવમાં સ્થિતિ હોવાથી તેનો એટલે કર્મ નો કર્મનો ઉપચાર કરીને જીવનો આ વર્ણ છે હેમિનાથ ભગવાન કાળા છે એમ વ્યવહારથી જણાવે છે, એટલે કે ઉપચારથી જણાવે છે. अब आगे ये व्यवहार का कथन हुआ. अब निश्चय का. फिर भी जीव कर्म नो कर्म से बंधा हुआ है, फिर भी निश्चय से उसका अर्थ जीव का स्वतंत्र वर्णन करना. निश्चय का अर्थ वास्तविक जीव का जैसा स्वरूप है ऐसे स्वरूप का वर्णन करना. निश्चय का अर्थ परद्रव्य का जीव में आरोपण किए बिना कथन करना. तो व्यवहार जो कथन करता है वो तो पर के आरोपण वाला कथन करता है, और निश्चय तो वास्तविक वस्तु का स्वरूप जैसा है ऐसा वर्णन करता है. इसलिए तुझे दोनों के कथन में विरोधाभास लगता है. विरोधाभास है नहीं, तुझे लगता है. देखो आगे. फिर भी निश्चय से सदाई जिसका उसका अर्थ है जीव का अमूर्त स्वभाव है, अमूर्त यानी अरूपी स्वभाव है. नेमिनाथ भगवान काला छे, नेमिनाथ भगवान काले हैं कि नेमिनाथ भगवान अरूपी है? तो कि नेमिनाथ भगवान को काले तब कह सकते हो कि द्रव्य कर्म नो कर्म को मिलाकर बात करो, तब उपचार से कथन कर सकते हो कि नेमिनाथ भगवान काले हैं. लेकिन निश्चय से वर्णन करना है तो नेमिनाथ भगवान का आत्मा
अरूपी स्वभावी है और उपयोग गुण के द्वारा यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों में यहाँ क्या लेने का है? द्रव्य कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म नो कर्म से अधिक है, उसका अर्थ भिन्न है। फिर से मैं बोलता हूँ, निश्चय से नेमिनाथ भगवान का आत्मा सदा यानी तीनों काल स्वभाव से देखा जाए तो अरूपी है, ज्ञान दर्शनमयी है, शुद्ध है, एक है, और अन्य द्रव्य से ऐसा नेमिनाथ भगवान के आत्मा का स्वभाव अधिक यानी पृथक है, भिन्न है। अब आगे, ऐसा जीव का कोई वर्ण नहीं। जीव को स्वभाव से देखा जाए तो जीव को कोई वर्ण ही नहीं है। जीव धर्म अधर्म आकाश काल 5 द्रव्य तो अरूपी है। रूपीपणा मूर्तिकपणा वो तो पुद्गल का स्वभाव है। तो तुम्हें आत्मा का वर्णन करना है तो कर्म नो कर्म पर द्रव्य है। तो कर्म नो कर्म क्षणिक जीव के संयोग में है, तो संयोग से जीव का वर्णन करना वो तो उपचार है, व्यवहार है। ऐसा कथन ज्ञानियों ने किया है शास्त्र में, ना नहीं है। तो ये व्यवहार का कथन है, इतना तो पहले समझ कि उपचार का कथन है, तो समझ। अगर व्यवहार नहीं है तो निश्चय नहीं होनी चाहिए। अब निश्चय नहीं से आत्मा का वर्णन कर, तो आत्मा तो स्वभाव से अरूपी है। आत्मा तो स्वभाव से सदाकाल ज्ञान दर्शनमयी है। तो ऐसे आत्मा के स्वरूप में कर्म नो कर्म नहीं है। कर्म नो कर्म दोनों आत्मा के शुद्ध स्वभाव से भिन्न है। तो निश्चय से आत्मा का स्वरूप जानना और व्यवहार से जानना, तो ये निश्चय का कथन है, ये व्यवहार का कथन है। ऐसा तूने नहीं जाना, इसलिए ज्ञानी का वचन परस्पर विरोधी है, ऐसा तुझे लगता है। वास्तव में जीव को देखने की 2 दृष्टि है। परद्रव्य के संबंध वाली दृष्टि, वो परद्रव्य के संबंध से रहित निरपेक्ष आत्मा को देखना। निरपेक्ष आत्मा को देखना वो निश्चय नहीं है। और परद्रव्य के साथ देखना, उसके संयोग में देखना, उसके साथ उभयबंध के साथ देखना,
वो व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। दोनों की देखने वाली दृष्टि भिन्न भिन्न है। तो अब क्या कहा? जीव का किसी भी वर्ण नहीं, ये वर्ण यानी रंग एक दृष्टांत के रूप में लिया। तो वर्ण का जैसा वर्णन किया कि वर्ण से कथन करना जीव का, वो उपचार कथन है। उसी प्रकार गंध से वर्णन करना आत्मा का, वो भी उपचार कथन है। स्पर्श रूप से वर्णन करना जीव का, वो भी उपचार कथन है। शरीर संस्थान सहनन, उसकी सापेक्षता से जीव का वर्णन करना, वो भी व्यवहार कथन है। राग द्वेष मोह संयोगी भाव, उससे वर्णन करना, वो भी व्यवहार का कथन है। प्रत्यय कर्म नो कर्म, उससे वर्णन करना, वो भी व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। वर्ग वर्गना स्पर्धक, उससे वर्णन जीव का करना, वो भी उपचार कथन है। अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मागणा स्थान, स्थितिबंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि का स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, ये सबसे कथन करना वो उपचार का कथन है। 29 से 29 प्रकार से वर्णन जीव का करना वो उपचार कथन है। व्यवहार कथन है तो निश्चय का कथन क्या? अगली गाथाओं में 29 से 29 प्रकार को अजीव में डाला था। अजीव को जीव में एक क्षण के लिए अभेद करके कथन करना उपचार कथन हो गया, व्यवहार कथन हो गया। व्यवहार से आत्मा ऐसा है, लेकिन निश्चय से क्या है? तो कि निश्चय से आत्मा का स्वभाव अरूपी, अमूर्तिक यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, अस्थि से देखो तो ज्ञान दर्शनमयी स्वभाव वाला शुद्ध अरूपी। तो ये निश्चय का कथन और व्यवहार का कथन समझने के बाद परस्पर अंतरंग में विरोध रहता नहीं है। अब आगे फिर भी ऐसा व्यवहार कथन करता है, फिर भी निश्चय से यानी पर के आरोपण बिना या तो स्वतंत्र जीव का वर्णन करने से जीव कैसा है? सदाई जिसका यानी जीव का अमूर्त स्वभाव है, अरूपी स्वभाव है, और जो उपयोग गुण के द्वारा यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव के द्वारा निश्चय आत्मा पर से अधिक है यानी पर से भिन्न है,
ऐसा जीव का ऐसा जीव का वो सर्व नहीं, वो का अर्थ क्या है? 29 प्रकार का जीव बताया, वो वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। अब तुझे मालूम पड़ा कि 29 प्रकार अजीव का है, तो उसका लक्ष्य छोड़कर, अजीव का लक्ष्य छोड़कर अमूर्त ज्ञान दर्शनमय आत्मा के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करके सम्यक दर्शन तू प्राप्त कर ले। अमूर्त स्वभाव है और जो यानी जीव, जो का अर्थ है जीव, उपयोग गुण के द्वारा यानी उपयोग गुण के माध्यम से अन्य यानी 29 प्रकार के अजीव से अधिक है यानी भिन्न है, ऐसे जीव का, ऐसा यानी अरूपी ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जीव का वो सर्व नहीं, 29 प्रकार के अजीव है, वो जीव का कुछ नहीं, वो तो जीव से भिन्न है। क्योंकि वर्णादि का अर्थ वर्ण आदि 29 भावों को और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। जीव के साथ अभेद कौन है? जीव का स्वभाव के 29 प्रकार के अजीव, तो के जीव के साथ अभेद उसका ज्ञान दर्शनमय स्वभाव है। 29 प्रकार के अजीव तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जीव से भिन्न है। तो ऐसा दोनों की भिन्नता का भान करके 29 प्रकार के अजीव का लक्ष्य छोड़ के जीव पर दृष्टि करने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब 2 मिनट है, फिर से गुजराती में। શિષ્યએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે વ્યવહારનું કથન અને નિશ્ચયનું કથન બંને વચ્ચે વિરોધ આવે છે, તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોવું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી જોવું એ બે વચ્ચે અંતર છે। તું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જોઈશ તો ક્ષણિક 29 પ્રકારના જીવોને જીવની સાથે એક ક્ષેત્રાવગા સંબંધ હોવાથી એ 29 પ્રકારના અજીવ એને જીવ કેવા એ તો વ્યવહારનું કથન છે, પણ નિશ્ચયથી જીવનું સ્વરૂપ જોવા જાતો આત્મા અરૂપી છે, જ્ઞાન દર્શનમય સ્વભાવી છે। આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ 29 પ્રકારના અજીવોથી સદાય એટલે ત્રણેય કાળ જુદો જુદો અને જુદો છે। જો તું નિશ્ચયથી આત્મ સ્વભાવને જોઈશ તો આત્મ સ્વભાવમાં ક્યાંય અજીવપણું દાખલ થઈ શકતું નથી।
અને જો તું વ્યવહાર નહીંથી કહીશ તો એક ક્ષેત્ર ઉગા સંબંધને કારણે તને એવો ભ્રમ થઈ જશે કે જીવના સ્વભાવો એકબીજા સાથે એકમેક થઈ ગયા છે. ખરેખર એકમેક થતા જ નથી. આમ જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવીને જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ભાવાર્થ કાલે ચાલશે. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય સદગુરુદેવના શિષ્યોમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ All participants are muted and they can સુવર્ણપુરી unmute ધામનો themselves. જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જીનેન્દ્ર.